کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ ایک سبق حاصل کریں گے۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک دیندار گھرانہ تھا جس گھر میں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا رہتے تھے۔ ماں باپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ باپ جو کہ امام مسجد تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے امام مسجد لوگوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نماز کی پابند تھی۔ سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارتا تھا اور یہ عورتوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی اور محلے کے بچے بھی ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی کا آغاز حج کے بعد کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شادی کرتے ہی ہمارے گھر والوں نے کہا کہ آپ لوگ حج کر کے آئیے۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی دیندار تھا۔ جب بھی وہ اپنے کسی بچے کی شادی کرتے تو ان کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ یہ ان کے خاندان کا ایک دستور بن چکا تھا۔ اب ان کا بیٹا بھی جوان اور خوبصورت تھا، مگر وہ بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی نماز تو پڑھ لیتا، مگر ان جیسا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ نہ تو وہ اپنے باپ کا کوئی کاروبار سنبھال رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ اور کرتا تھا، حالانکہ اس کے باپ نے اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ وہ بچہ جب چھوٹا تھا تو نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچپن کی ساری عادتیں چھوڑ دی۔ نہ نماز کی پابندی کرتا، نہ قرآن پڑھتا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر میں آئی اور جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس عورت کو چائے کا پوچھا تو کہنے لگی، آپا جی میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اور جھجکتے ہوئے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ گھرانہ بہت ہی دیندار گھرانہ ہے، ان کا سارا خاندان بہت ہی نیک پرہیزگار ہے، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے کترا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ بہن جی آپ کو جو کچھ کہنا ہے بلا جھجک کہیے۔ پھر وہ عورت ہمت کر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ بیٹے کے نام سے وہ عورت ایک دم اس عورت کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا ہوا ہے، میرے بیٹے نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیں آپا جی میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، آپ کا خاندان تو زندگی ہی حج کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے شروع کرتا ہے، مگر اس بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر علاقے کے کچھ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ آپا جی کہنے لگی کہ بہن جی اس نے کیا تنگ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کافی دنوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، کبھی ان کی لڑکیوں کو آتے جاتے باتیں کرتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد کر دی۔ ایک لڑکی اپنے جامعہ میں جا رہی تھی، ان کی چادر ہی کھینچ لی، پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چلی گئی اور وہ آپا جی گم سم بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کا شوہر گھر آیا، شام کا کھانا کھانے لگے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور حج بھی قریب ہے، وہ اسی سال حج بھی کرے، اور مجھے امید ہے وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والی کو بلا کر بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائیں جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو، میں جیسے کہیں گی ویسے رقم ادا کروں گی، رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والی نے رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپا جی نے ان کی شادی کر دی اور دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب وہ دونوں مل کر ان کی نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے۔ ان کو حج پر بھیجنا تھا، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت تھے، جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی یہ وہاں پر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسی جگہ بھیجیں
लंदन भेजें, पेरिस भेजें, अभी तो सारी उम्र पड़ी है खाना काबा जाने को, हम बाद में भी जा सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मगर इनके बेटे को जब पता था अपने खानदान का दस्तूर कि शादी के फौरन बाद हमें खाना काबा की ज़ियारत करना होता है, जब उनकी माँ मुस्कुराते हुए कमरे में 2 टिकटें लेकर गई तो कहने लगी, बेटा आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको हज करने की सादत अल्लाह ताला ने दी है। जब हमारी भी शादी हुई थी तो हमें भी सबसे पहले हज करने की सादत हासिल हुई और आप लोगों को भी हज करने की सादत हासिल हो रही है, वरना ज्यादातर हमारे खानदान वालों को पहले उम्रा ही करना पड़ा। अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए। वो दोनों मियाँ बीवी अपना सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जहाज पर सवार हुए जितने भी इस जहाज में हाजी सवार थे, सब के सब हाथों में तस्बीह पकड़ कर रहे थे। किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था और ये दोनों मियाँ बीवी जोर जोर से कहके लगाते हुए बातें कर रहे थे। फ्लैट में सभी हज करने जा रहे थे, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी कभी हंसते, उल्टी सीधी हरकतें करते। सब लोग उनको अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर ये दोनों अपने आप में मगन थे, उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। जब ये वहाँ से होटल पहुँचे तो वहाँ पर भी सब लोग उनसे बहुत ज़्यादा तंग थे। इधर लोगों का कहना था कि इन दोनों मियाँ बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थी। ये बातें तो अपने कमरे में करते, मगर इनकी आवाज़ें दूसरों के कमरों तक गूंजती रहती थी। इसी वजह से सारे होटल के लोग इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत ज़्यादा तंग थे। इधर के लोगों का कहना तो ये था कि दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बदअखलाक थे। इसकी बीवी तो पर्दे में ही थी, मगर पर्दे में भी वो बेपर्दा लग रही थी। इसका पर्दा ना होने के बराबर था। इसने लिबास भी ऐसा पहना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि ये यहाँ हज करने आए हुए हैं। और जो इसने ऊपर बुर्का पहना हुआ था वो इस कदर चुस्त था कि इस लड़की के हर जिस्म का हिस्सा वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा था। आजकल की जो बेहया लड़कियां हैं वो इसी तरह का अबाया पहना करती हैं। इस तरह पर्दा होना ना होना बराबर था। इस लड़की ने भी अबाया फैशन के तौर पर पहना हुआ था। इधर हर कोई इन दोनों मियाँ बीवी को मुड़ मुड़ कर देखता, क्योंकि इन दोनों ने फैशन के साथ साथ बेशर्मी की भी हद पार कर दी थी। वो दोनों होटल से लेकर हरम शरीफ के अंदर तक ऐसी बातें करते आ रहे थे जैसे ये तन्हाई में कर रहे हों। वहाँ के सभी लोग उनको देख रहे थे, अच्छे खासे तंग हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें करते, हंसते, कहके लगाते जा रहे थे और अजीब किस्म की शरारतें करते जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर इस लड़की का कहका इस कदर ऊंचा गूंजा कि लोग बड़ी मुश्किल से जब्त करके रह गए। पलट कर इन दोनों मियाँ बीवी को देखने लगे। इन दोनों में जरा भी हया बाकी नहीं थी। इस वक्त हरम शरीफ में मौजूद सामने खाना काबा था। इसके बावजूद इस तरह की हरकतें करते फिर रहे थे। इसके बावजूद उनके दिल में जरा भी ख्याल नहीं था, नाउजुबिल्ला, खाना काबा में वो ऐसी हरकतें कर रहे थे कि नाउजुबिल्ला जैसे वो सैर पर आए हों, होटल में नहीं बल्कि हरम शरीफ में भी यही हरकतें थी। एक मरतबा तो जिस ग्रुप के साथ वो आए थे उन्होंने इन दोनों को समझाना भी चाहा कि अगर आप पहली मरतबा हज पर तशरीफ़ लाए हैं तो आपको यहाँ के कवानीन और ज़वाबित का पता होना चाहिए। आखिर को आप मुसलमान हैं, हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम है। आप दोनों इस तरह हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग पिकनिक पर आए हों। इस शख्स की बातें इन दोनों मियाँ बीवी को इस कदर जला रही थी जैसे कोई आग लकड़ी को जलाती है। वो दोनों इस शख्स के साथ बदतमीजी करने लगे, झगड़ने लगे। ये लड़का समझाने वाले शख्स का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो हमारे बाप बनने वाले? हमने तुमसे कहा था कि हमें मशवरा दो, नसीहत करो। हम अपना अच्छा या बुरा समझते हैं, पहले खुद को तो देख लो। तुम कौन सा किसी मस्जिद के इमाम हो? जाओ जाकर पहले अपने खुद के तो गुनाह बख्शवा लो, फिर दूसरों पर नज़र रखना। बेहतर है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करवा दिया करते थे। इस शख्स के जाने के बाद ये दोनों हाथ पर हाथ मार कर हंसने लगे। अब काफ़ी लोग उनकी हरकतों की वजह से चुप रहते थे। यहाँ आकर ना तो उन लोगों ने नमाज पढ़ी, ना ही किसी किस्म की कोई ज़ियारत में दिलचस्पी दे रहे थे। ये तो बस ज़बरदस्ती उनके घर वालों ने उनको बेच दिया था और उनके आसपास के लोग काफ़ी हद तक तंग दिखाई दे रहे थे। तो नाज़रीन, फिर इन दोनों के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इन दोनों की ज़िंदगी ही बदल दी। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों मियाँ बीवी बस दौलत को ही सब कुछ जानते थे। उनको ये था कि दौलत है तो हर चीज़ को हम खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ जो हुआ सभी लोगों की देखकर चीखें निकल गईं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था। हाजी सुबह सुबह तवाफ़ करने निकल गए, क्योंकि वो हाजी चाह रहे थे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारतें करेंगे। और ये दोनों सुबह सुबह होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे। वो आपस में कह रहे थे कि आज हम आखिरी बार हरम शरीफ जाएंगे।
बाकी के दिन हम सैर व तफरीक के लिए निकल जाएंगे। वो लड़की अपने शोहर से कहने लगी कि आपके घर वाले भी बहुत अजीब हैं, शादी के फौरन बाद हमको ज़बरदस्ती इधर भेज दिया। उसका शौहर कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपने ख़ानदान के दस्तूर निभा रहा हूँ, वरना मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। नाजरीन, कितने अफसोस की बात है, इन दोनों को इस दस्तूर का पता ही नहीं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, इससे महरूम हैं। ये दोनों अभी रास्ते में ही थे कि हरम शरीफ आने तक अभी कुछ वक्त बाकी था। रास्ते में इन दोनों को काफ़ी सारे भीख मांगते हुए लोग नज़र आ रहे थे, जिनमें से बहुत सारे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी। 2 बच्चे इन दोनों मियाँ बीवी के पास आकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो दोनों बच्चों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गए। फिर थोड़ा सा आगे गए तो उन दोनों को एक बूढ़ा बुजुर्ग बेकारी नजर आया, जो खुद को बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ उनके पास आया, क्योंकि इस बेकारी की तो दोनों टांगें कटी हुई थी। वो अपनी दोनों टांगों से महरूम था और एक बाजू भी उसका कटा हुआ था। बस एक बाजू के सहारे खुद को घसीट रहा था और उनके आसपास आकर कहने लगा कि मुझे कुछ सदका खैरात दे दीजिए। वो दोनों आपस में बातें करने लगे, मगर ऐसे थे कि उन्होंने बेकारी को देखा ही नहीं। फिर इस बेकारी ने खुद को मजीद घसीटा और उनके पाँव पकड़कर कहने लगा कि मुझे कुछ खैरात दे दीजिए। जैसे ही इस लड़के को पता चला कि बेकारी ने मेरे जूते पर हाथ रखा है, उसने जोर से इसका हाथ पकड़कर झटका और अपने पाँव की ठोकर से इस बेकारी को मारने लगा। सीने पर, पीठ पर, मुंह पर, जिस कदर हो सकता था वो अपने बारी जूतों से इसको मार रहा था। कहने लगा कि गंदे इंसान, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए, चल उठ बुड्ढे बेकारी, अब मेरे जूते साफ करो। फिर वो अपना जूता उसके मुंह के ऊपर रख देता है और दूसरा पाँव उसके बाजू के ऊपर रख देता है। कहता है कि अपनी जुबान के साथ इसको साफ करो। वो बेचारा बेकारी क्या करता, डर से आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। एक तो उसके अजाब पूरे नहीं थे, जो उसका बाजू एक बचा था उसके ऊपर भी इस कमीने ने अपना एक जूता रखा हुआ था और वो चिल्ला रहा था कि जो तुम्हारा एक हाथ है मैं इसको भी काट दूंगा। आखिर वो बेचारा बेकारी करता तो क्या करता, सवाए आंसू बहाने के। जब उस लड़के ने काफ़ी उस पर तशद्दुद कर लिया, उसकी बीवी कहने लगी कि चलो चलते हैं, ये अपाहज किसी काम का नहीं है, ये तो इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग उनके आसपास जमा हो चुके थे। वो लोग उनको रोकना तो चाह रहे थे, मगर उनकी बदतमीजी देखकर सब पीछे हट गए। वो लोगों को देखकर उन पर भी गाली गलौज करने लगा। वो गाली गलौज करते हुए गुस्से में हरम शरीफ में दाखिल होने वाला था कि वो लड़का जैसे ही हरम शरीफ के दरवाजे पर आया तो लड़का अचानक दरवाजे से चीखने लगा और जैसे ही इसने हरम शरीफ के अंदर पाँव रखा, उसके हाथ पाँव मुड़ने लगे। वो दर्द से चिल्लाने लगा था। लोग उस लड़के की चीखें सुन रहे थे, उसे थाम कर उससे सवाल करने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन बजाय कि वो बताए वो दर्द से चिल्लाने लगा और फिर देखते ही देखते दर्द से दोहरा होने लगा। वहीं फर्श पर गिर चुका था, उसकी शक्ल देखते ही देखते बदल गई। वो एक अजीब सा जानवर बन चुका था, उसके पैर भी मुड़ चुके थे, वो उठकर चल भी नहीं पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसकी बीवी उसके पास गिर गई। वो मुंह से बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो। वो रोती हुई शौहर के पास जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ मुड़ चुके। वो यूं चल रही थी जैसे 4 पैरों वाला कोई जानवर चलता है। उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। वो दोनों जानवरों की तरह हरम शरीफ के अंदर पड़े हुए थे। वो शख्स तो पूरा जानवर बन चुका था और उसकी बीवी आधी इंसान और आधी जानवर थी। इस लड़के का पूरा बदन सफ़ेद हो चुका था। वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं किस ज़बान में बातें कर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों ने जल्दी से खादमों को बुलाया। वो खिदमतगार उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। उनको देखकर डॉक्टर भी तौबा इस्तगफार करने लगे। सब लोग अल्लाह ताला से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इन दोनों को एक साथ क्या हुआ। इन दोनों के साथ आए हुए काफिले वाले लोग यही कह रहे थे कि इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है। कुछ घंटों के बाद वो दोनों मियाँ बीवी इबरत का निशान बन गए। वो ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर चुके थे। सारे मक्का वाले लोग उनको देखने आ रहे थे। लोग तौबा इस्तगफार करते जा रहे थे। हर कोई उनके साथ आए हुए काफिले वालों से पूछता कि आखिर इनके साथ क्या माजरा पेश आया। उनकी हकीकत सबके सामने खुल गई कि कैसे ये लोगों के साथ बदतमीजी करते थे और एक लाचार फकीर के साथ कैसे उन्होंने जुल्म किया। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींचने पर आता है तो एक पल भी नहीं लगाता। सारे हाजियों में और सारे मक्का में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और लोग उनको देखकर कानों को हाथ लगाकर इस्तगफार का विर्द करना शुरू हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, देखा आपने कि अल्लाह ताला किस तरह जुल्म करने वाले का अंजाम करता है और